الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز سادات ذوی احترام علماء کرام مشائخین اعظام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کرتے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بالمرسل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اور بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بالمرسل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اور محبت سے دل لگا کر نبی والے نبی پر صلی اللہ علیہ نبی والے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، ابھی آپ نے ایک پرکیف منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا جب بچوں کے سروں پر دستار حفظ رکھا جا رہا تھا. یہ حسین منظر آپ نے دیکھا. ماشاءاللہ دارالعلوم ہاشمیہ نادریہ فیضان سرکار کلا نے اور ان کے اساتذہ نے، منتظمین نے، آپ جیسے معاونین کی محنت سے یہ بچے اس مقام پر پہنچے. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. بڑی سعادت مندی، فیروز بختی اور نصیبے کی بلندی کی بات ہے. صرف وہ بچے ہی نہیں، ان کے ماں باپ ہی نہیں، بلکہ یہ بچے جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے لوگ بھی خوش نصیب ہیں. اور صرف محلے کے لوگ ہی نہیں، یہ بچے جس ادارے میں پڑھتے ہیں اس ادارے کو جو تعاون کرتے ہیں وہ سب خوش نصیب ہیں. ان کے تعاون سے حافظ قرآن بنے. میرے پیارے، مقام کیا ہے ان بچوں کا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں؟
आप तसव्वुर करो, 2 बच्चे हैं आपके, एक बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, एक बच्चे को मदरसे। ये बेइतनाई है आपकी, नाकदरी है आपकी, गफलत है आपकी कि जिन बच्चों को आप स्कूल भेजते हो उन पर बड़ी तवज्जो रहती है आपकी। सुबह उठते हो, तैयार करते हो, फिर बस से जाते हो तो बस में, गाड़ी से जाते हो तो गाड़ी से, या खुद जाके आप छोड़ के आते हो इसको। लेकिन दूसरी हकीकत ये है कि जो मदरसे में बच्चा आता है, फिक्र भी नहीं होती कब जाता है कब आता है। लेकिन सच्चाई है, दुनियावी स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जिन बच्चों को आप भेजते हो, उससे बड़ी तमन्नाएं हैं, बड़ी ख्वाहिशात आपकी जुड़ी हुई हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। ये बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS IPS, दुनिया में कामयाब किसी न किसी मकाम पर होकर पहुंचेगा और हमारे लिए बड़ा ही मुआविन होगा, मददगार होगा। इससे होने वाली आसानियां हमारी जिंदगी को मिलेंगी। ये सब सोचते हो, ये सब तमन्नाएं हैं आपकी उन बच्चों के लिए जिनको आप स्कूल भेजते हो। ये सच्चाई है कि नहीं? है ना? लेकिन मदरसे में जो बच्चे आते हैं वो कब गए मदरसे, कब आए मदरसे से, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कभी आप उनकी फिक्र भी नहीं करते। लेकिन मेरे प्यारे, आपकी बेइतनाइयों से इन मदरसे में आने वाले बच्चे, कुरान को हिफ्ज करने वाले बच्चों की अजमतें और उनकी कदरें कम नहीं होती, इसलिए कि उनकी इज्जतें तो रब ने कायम की। देखो कितना अजीम फर्क है। एक बच्चा जो स्कूल जाता है वो तुम्हारी तमन्नाओं के साए में जाता है। उसके सरों पे तुम्हारी तमन्नाएं होती हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, घर की तरक्की होगी, आसानियां होगी, यही तो तमन्नाएं होती ना। तो वो बच्चा जो स्कूल जाता है तुम्हारी तमन्नाओं के साए में जाता है। लेकिन वो बच्चा जो घर से निकलकर मदरसे जाता है वो फरिश्तों के परों के साए में जाता है। अब तसव्वुर कीजिए, तुम्हारी तमन्ना अजीम है कि फरिश्तों का साया अजीम है। मैंने इसीलिए कहा था कि वो माँ बाप भी खुश नसीब है, मोहल्ले के लोग भी खुश नसीब है। जरा देखो, वो बच्चा जब मदरसे से निकलता है, जिस मोहल्ले में रहता है, घर से निकलता है, मोहल्ला क्रॉस करके मदरसे पहुंचता है ना, तब उनके सरों पे साया करने के लिए उस मोहल्ले में फरिश्ते भी तो उतरते हैं। तो पूरा मोहल्ला फरिश्तों के साए में आ जाता है। तो जिस मोहल्ले में हाफिज कुरान बच्चे रहते हैं, हिफ्ज करने वाले बच्चे कुरान के रहते हैं, वो मोहल्ले के लोग भी खुश नसीब, माँ बाप भी खुश नसीब। और जो लोग मुआविनीन हैं इदारों के, ऐसे इदारों के जहाँ बच्चे कुरान को हिफ्ज कर रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, उनका भी बड़ी अजीम मामला है, बड़ा इनाम मिलेगा उनको हश्र के मैदान में। वो बच्चा जो हाफिज कुरान है, रब के हुजूर पेश किया गया, फरिश्ते कहेंगे मौला ये तेरे कुरान के, तेरे कलाम का हाफिज है, कुरान का हाफिज है। तो फरमाएगा ले जाओ इसे जन्नत में डाल दो। जब वो जन्नत की तरफ जा रहा होगा, आवाज आएगी रुको, तुम अकेले जा रहे हो, तुम अकेले जा रहे हो, जाओ इस हश्र के मैदान में ढूंढो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, उन्हें ढूंढो, जिनके ताबू से तुमने पढ़ा है उन्हें ढूंढो, उन सबको जमा करो और अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। कितना अजीम काम है ये। अलग बात है कि आपकी बेइतनाइयों का शिकार हो जाता है ये मरला। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ अभी कोई इंजीनियर बन के आता तो पूरे गांव की दावत कर डालते। लेकिन कितना रस्मी अंदाज पे दस्तार बांधी गई, बच्चे गोशे में बैठ गए, एक फूल आपने 10 रुपए का लिया, गले में डाल दिया, बात खत्म हो गई। मैं आपके एहसासात को बेदार करना चाहता हूँ। ये बड़े अहम लोग हैं ये, जिनके सीनों में कुरान महफूज हुआ है, बड़ी बरकतें इनके जरिए से हासिल होती हैं। मेरे प्यारे याद रखो, 2 तरह के इल्म हैं दुनिया में।
جسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہو. ایک ہے دین کا علم. دین کا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم, حدیث کا علم, آپ سمجھ گئے نا. اور ایک علم ہے دنیا کا علم. اب یہ دونوں علم انسان کو کیا بناتے ہیں؟ میرے پیارے, دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ انسان کو ترقی نہیں دیتے. نو, یہ دعویٰ ہے آج کا کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے, سائنٹسٹوں نے بڑی ترقی کر لی ہے, انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے. یہ غلط دعویٰ ہے. انسان نے ترقی نہیں کی ہے. انسان نے جس چیز کا علم حاصل کیا وہ اس چیز نے ترقی کر لی. انسان تو وہیں کھڑا ہے. انسان نے لوہے کے چیزوں پر نظر ڈالی, اس سے چیزیں بنائی, اور اتنی ترقی کی اس لوہے نے کہ وہ لوہا جو زمین میں پڑا ہوا تھا آج آسمان میں اڑ رہا ہے. تو آسمان میں لوہا اڑ رہا ہے, انسان نہیں اڑ رہا ہے. تو ترقی کس نے کی؟ انسان نے کی, لوہے نے. یہ دنیا کے جتنے علم ہیں وہ انسان کو ترقی نہیں دیتے, ان کے ذریعے چیزوں کو ترقی ملتی ہے. لیکن علم دین وہ علم ہے جو انسان کو عروج بخشتا ہے, جو انسان کو ترقی دیتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, اگر دنیا کے علم انسان کو ترقی دیتا تو کیا دنیا کے اندر یہ حیوانیت ہوتی؟ اگر انسان ترقی کرتا تو پھر ایک انسان کو ہلاک کرنے کے لیے میزائلیں اور ایٹم بم نہ بناتا. اس طرح کے ہلاک کر دینے والے ہتھیار کے پیچھے دنیا نہ بھاگتی. اگر انسان ترقی کرتا تو پھر ایک ایسا بم بناتا جس کے مارنے سے کینسر کے سارے مریض ٹھیک ہو جائیں. انسان کو بچانے کی کوشش کرتا, انسان کو مارنے کی نہیں, اگر انسان ترقی کرتا. لیکن آؤ دیکھو, یہ دین کے علم حاصل کرنے والوں کو دیکھو, یہ انسان کو مارنے کی بات نہیں کرتے, انسان کو زندگی دینے کی بات کرتے ہیں. انسان کو ترقی و عروج کے مقام پر پہنچانے کی بات کرتے ہیں. جتنے لوگ بھی دینی علم کے اسکالرز ہیں, اب دینی علم کا پڑھنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سمجھنا, سمجھ کے ساتھ پڑھنا, ایک صرف پڑھ لینا. ایسے دنیا میں بھی ہے, ڈگریز لے لیتے ہیں لوگ, انٹر پاس کر لیا, پھر اس کے بعد گریجویٹ کر لیا, پوسٹ گریجویٹ کر لیا, سرٹیفکیٹ دے لیا, اس کے بہار پر نوکری کر لی. لیکن جو کچھ اس نے پڑھا سلیبس میں, میتھ پڑھا, جیومیٹری پڑھا, جغرافیہ پڑھا, ہسٹری پڑھا, سوشل سائنس پڑھا, کیمسٹری پڑھا, فزکس پڑھا, بایولوجی پڑھا, کچھ بھی پڑھا, اسے سمجھا کچھ نہیں, خالی ڈگری. اور ایک پڑھنے والے نے پڑھا تو سمجھ کر پڑھا. جس نے سمجھ کر پڑھا وہ سائنٹسٹ بن گیا, اور جس نے بے سمجھے پڑھا وہ ڈگری ہولڈر بنا. ایسے ہی مدرسے میں بھی ہے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں, جو بے سمجھے پڑھتے ہیں وہ صرف سند یافتہ ہوتے ہیں, اور جو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ فقیہ بن جاتے ہیں, محدث بن جاتے ہیں, مفسر بن جاتے ہیں, اور جو ان کی گہرائیوں تک, ان کی معرفت تک پہنچتے ہیں وہ ولی بن جاتے ہیں. وہی ولی بنتے ہیں جو معرفت تک پہنچتے ہیں, جنہیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے, وہ عارف بن جاتے ہیں اور ولی بن جاتے ہیں. تو میرے پیارے, یہ وہ علم ہے جو انسانیت کو ترقی دیتا ہے, انسان کو عروج بخشتا ہے, انسان کو بلند مقام پر پہنچاتا ہے. یہ وہ علم ہے, یہ علم قرآن کا علم ہے, یہ علم حدیث کا علم ہے. اس علم کے ذریعے انسان ترقی پاتا ہے خلاصہ. اس لیے اسے کبھی بھی ہلکے میں مت لینا, یہ بڑا اہم ہے. دنیا کے سارے علوم, جتنے بھی علم دنیا میں وضع کیے گئے ہیں, رائج ہیں, ان سب علموں میں سب سے زیادہ باعظمت, باوقار اور فضیلت والا علم اگر ہے تو علم دین ہے, علم قرآن ہے, علم حدیث ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آپ جا کر دیکھیے, آج کے دور میں آپ کو معلوم نہ ہو, ایک پینٹاگون اور ناسا, امریکہ کی بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں دنیا کے سارے ریسرچ ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ وہاں بیٹھتے ہیں اور مختلف چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, دنیا کو دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ سارے سائنٹسٹ
जो नासा के अंदर, पेंटागन के अंदर बैठे हुए हैं ना, इन सब के टेबलों पर कुरान और हदीस खुली भी रखी है। ये सारी चीजों की तहकीक कुरान से करते हैं, कुरान को ही अपना माखज़ बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर तहकीक शुरू करते हैं। उन्हें पता है कि जितनी भी चीजें दुनिया में अल्लाह ने पैदा की हैं, सबका इल्म इसी कुरान में मौजूद है। इससे बेहतर कोई सोर्स नहीं है दुनिया और मादियत के जानने का। इसलिए पेंटागन में बैठे हुए साइंटिस्ट, नासा में बैठे हुए साइंटिस्ट सबसे ज्यादा अगर किसी किताब को पढ़ते हैं तो वो कुरान है, किताब को पढ़ते हैं वो हदीस है, फरमान नबी है। हैरत की बात है, दुनियावी साइंटिस्ट पढ़ के दुनिया की चीजों को कहां कमाल तक पहुंचा रहा है, और हम तो उसके अमीन बनाए गए थे, उस कुरान और हदीस के हम अमीन बनाए गए थे। लेकिन आज भी कुरान के हदीस नबी के फरमान हमारी जिंदगी से कैसे दूर नजर आते हैं। तो खुशनसीब है वो माँ बाप जिनके घरों में हाफिज कुरान पैदा, मोहल्ले वाले खुशनसीब हैं, वो मावरीन खुशनसीब हैं, और वो लोग जो ऐसे इदारों की खिदमतें करते हैं, जुड़ते हैं, इदारों को फरोग देने के लिए काविशें करते हैं, बेलौस काविशें करते हैं, वो लोग भी खुशनसीब हैं। यकीन है और ये हकीकत भी है कि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी अजर अता फरमाता है और आखिरत में भी फरमाएगा। आज मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, दुख भी हुआ कि इस इदारे के इब्तिदा से लेकर हमेशा बड़ी मेहनतों काविशों के साथ एक शख्सियत थी जिसका नाम मौलाना जमील अख्तर साहब था। वो लगे रहे, बड़ी मेहनतें उनकी इस इदारे के नज़्म नस्क़ में, तकदीर में, इस इदारे के मामलात में, उसको फ़रोग़ देने में बेलौस खिदमत की है। आज वो हमारे बीच नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। ये फ़कीर शफ़ी गदाई गिलानी रब की बारगाह में दुआ करता है कि मौला करीम तो उनकी कब्र में उनके लिए आसानियाँ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके घर वालों को सब्र जमील अता कर। इस इदारे के लिए अजीम खसारा। दूसरा जो अफसोसनाक खबर मिली, मौलाना मुख्तार हैं, हाफिज मुख्तार साहब हैं, वो यहाँ दर्स दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनके अहलिया का भी विसाल हो गया। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम मौला करीम उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और हाफिज मुख्तार साहब को सब्र अता फरमाए, नेमत बदल अता फरमाए। आज आप मदरसे के इजलास में, मैं कोई चटपटी तकरीर करने के प्रोग्राम में नहीं हूँ, चूँकि मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि जब ऐसे इल्मी मराकिज़ में आप बैठे उसके सहन में, उसके जलसगाह में, तो आपको कुछ दिया जाए जो लेकर आप जाए। समझ गए ना? उमूमन तकरीर सुनने के बाद क्या कहते हैं आप? मज़ा आ गया। क्या कहते हैं? मज़ा आ गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तकरीर कौन सी खाने पीने की चीज़ है जिसमें आपको मज़ा आ गया। यही फर्क है आज में और कल में, यही फर्क है। कल लोग जलसों में आते थे, खुतबा खिताब करते थे, तो जाने वाले फिर कहते थे कि लुत्फ आ गया, रूह बाग हो गई, रूह में ताजगी पैदा हो गई, कैफियत आ गई, मोहब्बतों में इजाफा हो गया, ये कहते थे। आज क्या कहते हैं? मजा आ गया। अब जाहिर है जो चीज़ खाई जाती है वो निकल भी जाती है। यही वजह है कि जो रात में आप खाते हैं तकरीर को खाते हैं, उसके बाद सुबह होती है तकरीर गायब हो जाती है। मेरे प्यारे, अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाओ। मैं जो बात आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहकर कहूँगा, ये सादात लोग बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ कि जब ये आते हैं तो इनके हाथ की तरफ आप बहुत तेजी से लपकते हैं। आपका बस चले तो इनका हाथ इनके साथ रहने ही न देना। हालांकि ये अजब तारीख है, अजब तारीख है। एक कौम ऐसी गुजरी है जो सादात का हाथ चाहती थी, बात से इनकार करती थी, हाथ को चाहती थी। और आप भी उसी रविश पर जा रहे हैं। आपको सिर्फ हाथ चाहिए, बात नहीं चाहिए। जबकि सच्चाई है, अहले मोहब्बत की रविश ये है कि अहले मोहब्बत वो है जो सादात की बात नहीं मानते हैं, सादात की हाथ की दस्तबोसी भी करते हैं। ये अहले मोहब्बत है और आप उस रविश पर जा रहे हैं। इसलिए आज
میں کہوں گا آپ سے کہ ہاتھ تو چوم لیا، ہمارے شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے اور سادات آئے، ہاتھ چوما آپ نے، اب یہ فقیر جو بات کہہ رہا ہے اسے بھی دل سے لگا کر رکھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ آج ضرورت ہے اس بات بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسی حوالے سے جو تک آج تلاوت قرآن کا شرف حاصل کیا، اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والے ہو جاؤ۔ مولا ایمان والے تو ہیں ہی، اب ایمان والے ہو جاؤ اس کا کیا مطلب؟ کتنی ضرورت ہے آج اس بات کی، کتنی بولتی ہوئی آیت ہے ہم سب کے درمیان، کہ ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والو سنو، یہ جو تم صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہو، اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، تم نے کوئی محنت نہیں کی ایمان والا بننے میں، یہ تو میرا فضل ہے، میرا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مسلمان کی گود میں ڈال دیا تو تم مسلمان ہو گئے، کہیں اور پیدا کرتا تو تم وہ ہو جاتا۔ یہ ایمان بڑا قیمتی ہے اور یہ احسان میرا عظیم ہے، یہ بڑا فضل ہے میرا کہ ہم نے تم کو صاحب ایمان بنایا، یہ عظیم فضل ہے۔ اے لوگو، اس عظیم فضل کی قدر کرو، قدر کرو، ایمان والے ہو جاؤ۔ قدر کرو کا مطلب جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایمان کے تقاضے ہیں، اسے فلفل کرو اور میرے اس احسان کی قدر کرو کہ میں نے تمہیں صاحب ایمان بنایا۔ اب آپ دیکھیں، ایمان آج کل تو مسلمان کیا ہے؟ باپ عبدالسلام، باپ عبدالکلام، بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام۔ نہ آگے کچھ معلوم نہ پیچھے کچھ معلوم، ٹریڈیشنز، رسومات کی طرف ہم سے بھاگتے ہیں، حقیقت سے واقف نہیں۔ میرے پیارے، بدلنا ہو۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں، مختلف پارٹیکل پارٹیز سے، کوئی کانگریس سے جڑا ہوا ہے، کوئی کسی سے جڑا ہوا ہے۔ نوجوان ہمارے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیڈر نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے، ان کے اسٹیٹمنٹ تو یاد ہے، لیکن مسلمانوں میرے سنو، یہ کوئی تمہارے لیڈر نہیں ہے، تمہارے ریئل لیڈرشپ کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حقیقی لیڈر کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج جس کے ہم امتی ہیں، جس کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں، امت محمدیہ سے دنیا ہمیں جانتی ہے، اس حقیقی لیڈرشپ کا ایک قول بھی ہمیں معلوم نہیں، یاد نہیں ہے۔ یہ ہماری وابستگی ہے نبی سے، افسوس کی بات ہے۔ یہ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان جو رب کے فضل سے تمہیں ملا ہے، احساس کرو میرے پیارے کتنا قیمتی ہے یہ ایمان۔ جب اس کی قدر کا احساس ہوگا تو پھر رب کے فضل کا اور احسان کا بھی احساس ہوگا تمہیں۔ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، مجھے بتاؤ، یہ دنیا کے سارے رشتے جو دنیا میں ہیں، بھائی، بہن، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ سارے رشتے کب تک ہیں تمہارے ساتھ؟ کب تک جڑے ہوئے ہیں؟ جب تک تم زندہ ہو۔ کیا مرنے کے بعد بھی یہ رشتے قائم رہیں گے؟ نہیں۔ نہ ماں کی ممتا رہے گی، نہ باپ کا پیار رہے گا، نہ دوست کی دوستی رہے گی، نہ بہن کا پیار رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، سب اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ تم قبر میں تنہا ڈال دیے جائے، کوئی جائے گا ساتھ میں؟ باپ جائے گا، ماں جائے گی، بہن، دوست، بھائی جو قبر میں جائے گا؟ جب کہ تم زندہ تھے تو سب تمہارے ساتھ تھے، تمہیں کوئی پریشانی ہو سب ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج تو ساری پریشانیوں سے بڑی پریشانی ہے کہ زمین کا گڈھا کھود تو اس میں تمہیں تنہا ڈالا جائے گا۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں انصاف سے بولو، کوئی جانے کو تیار ہوگا؟ کوئی نہیں۔ یہ سارے رشتے اس وقت تک ہیں جب تک کہ تم زندہ ہو، لیکن تمہاری جسم سے روح نکلی، سارے رشتے ختم، قبر میں تمہیں تنہا جانا ہوگا، اس تنہائی میں تمہیں کہنا رہنا ہوگا۔ لیکن میرے پیارے، اگر کوئی ساتھ جائے گا تو قربان جاؤ اس ایمان کے، جہاں کوئی رشتہ، کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے تو یہ ایمان تمہارے ساتھ جائے گا۔
हमारे साथ जाएगा। वीडियो में मैं इंतहा की बात करता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, इंतहा की बात करता हूँ। अब 15 मिनट तक नहीं है कि अल्लाह आया गया पकड़ा अगर किसी के गुनाहों की वजह से ईमान में मौत हुई, लेकिन गुनाह बहुत से गुनहगार था, तो सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने अगर किसी को जहन्नम में डाल दिया, मालिक को मुख्तार है, इख्तियार है उसका, सजा के तौर पर जहन्नम में डाल दिया। तो मेरे प्यारे अगर कोई गुनहगार शख्स मरा ईमान पर, लेकिन गुनहगार था, अल्लाह ने उसको सजा के तौर पर जहन्नम में डाल दिया, तो ये ईमान जो है ना, मैं बना देता वहाँ भी उसके साथ जाएगा। जितने जुड़े लोग से कब्र में ही नहीं, अगर वो जहन्नम में गया तो जहन्नम में भी ईमान उसके साथ जाएगा। अब ईमान से पूछो, ऐ ईमान तू तो जन्नत का फूल है, कमरे जैसा तू जहन्नम में कैसे आ गया? भीड़ बहुत है तो जन्नत की चीज है ना, लेकिन ईमान उसके साथ वहाँ भी जहन्नम में भी जाएगा। ईमान से पूछोगे कि तू तो जन्नत का फूल है, तू जहन्नम में कैसे आ गया? तो कुर्बान जाओ इस ईमान के। ईमान बोलेगा, अरे जब दुनिया में इसने मुझे नहीं छोड़ा, तो आज इसके बुरे वक्त में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? और मैंने अगर छोड़ दिया तो जन्नत में लेकर कौन जाएगा? मैं ही तो हूं जो इसे जन्नत में लेकर जाऊं। कितना कीमती है ईमान मेरे प्यारे। ये रब के फल से, उसके एहसान अजीम से ये नेमत, ये दौलत हमें मिली है, हमें कदर करनी चाहिए। और इसकी कदर कैसे होगी? जो ईमान के तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा करना होगा। पूरा करेंगे तो ईमान की कदर हम करेंगे, रब के इस एहसान अजीम की हम कदर करेंगे। आज जरूरत इस बात की, हम मुस्लिम हैं मेरे प्यारे। आप देखें, हम आजाद नहीं हैं, हम दूसरों की तरह नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं। हम वो हैं जिन्होंने बाजार मुस्तफा में अपनी जानों का सौदा कर लिया। हम अपने आप को बेच चुके हैं, गुलामी मुस्तफा का पटका हमारी गर्दनों में डाला जा चुका है। हम आजाद नहीं है, हमारे हर फिक्र, हमारा हर कदम शरीयत मुहम्मदिया का पाबंद होना चाहिए, इसलिए कि हम बिके हुए हैं, हमने अपनी जानों का सौदा कर लिया है, हम आजाद नहीं है। हालांकि हकीकत में यह है कि हम हर जगह आजाद हैं, अपनी सोच को मुकद्दम रखते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हमारे इस अमल से हमारा रब नाराज होगा कि राजी होगा, हमारे आका खुश होंगे कि नाराज होंगे। कभी हमारी जिंदगी में ये सोच नहीं आती। यही वजह है मेरे प्यारे, दुनिया ने आज हमें ठोकरों पर डाल दिया। वक्त है बदलने का, सुन सुन कर सुन्नी कहलाने का ज़ौक़ खत्म कर दो, बल्कि नबी की सुन्नतों पर अमल करके सुन्नी मुसलमान बनो। बड़ी जरूरत है आज। आप देखें कितनी अजीम नेमत है, कितनी अजीम नेमत है ये नमाज। बात सभी कहते हैं, नमाज कितनी अजीम नेमत है। आपने उसको नेमत समझ के कभी करने की कोशिश ही नहीं। अब आप उनसे पूछिए, सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही की बारगाह में आइए, वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि नमाज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अजीम नेमत है कि अगर अल्लाह ये नेमत अता ना करता तो कोई आशिक इश्क की आग से अपने वजूद को बचा नहीं पाता। फरमाते हैं कि नमाज ही वो चीज है जब इश्क की तपिश बढ़ती है और वो नमाज में खड़ा हो जाता है तो नमाज उस इश्क की तपिश को ठंडा कर देती है। अजीब अजीब नेमतें हैं इसमें, इस नमाज में मेरे प्यारे। नमाज वो चीज है कि अगर तुम उससे मोहब्बत कर लो ना, और उसने अगर तुमसे मोहब्बत कर ली ना, तो फिर इसके बगैर करार भी नहीं आएगा। अजीम नेमत है मेरे प्यारे, इस नेमत से हमने अपने आप को महफूज कर रखा। आज के दौर में तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप देखें, भाई के दिलों में भाई के लिए प्यार नहीं, बाप के दिलों में वो बेलोश शफकत नहीं, बेटे के दिलों में बाप के लिए वो इज्जत नहीं, घरों का माहौल खराब है, खुद गर्जी है, सेल्फिशनेस है, किसी को किसी से मतलब नहीं। ऐसे ही तो माशरे में हम जी रहे हैं, किसी के दुख से किसी को दुख नहीं होता, किसी की खुशी से खुशी नहीं, हसद पैदा हो जाता है, किसी का तो माहौल है, ऐसे ही तो माहौल में जी रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे कल्बों में गुनाहों की कसाफत दबलीस पर्दा पड़ गया। तो जो हमारे कल्ब की रूहानियत है, जो उसका नूर है, वो उस गुनाहों के दबीस पर्दे में दब गया है, इसलिए ये बुराइयां हमारी जिंदगी में नजर आती हैं। मेरे प्यारे, इसको साफ कैसे करें? अजीम नेमत की नमाज। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बंदा
नमाज के लिए खड़ा होता है तो इससे पहले कि वो अल्लाह अकबर कहे, कहने ही वाला होता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को हुक्म देता है, देखो ये बंदा मेरी बारगाह में हाजिरी देने के लिए आ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, अल्लाह अकबर कहने के लिए जा रहा है। इससे पहले कि वो अल्लाह अकबर कहे, जाओ जाओ, इसके अंदर जो नजासत है गुनाहों की, उस नजासतों को इससे अलग कर लो, उन नजासतों को अलग कर लो। ये पाक साफ था, इसने वजू करके अपने आप को नमाज के लायक बनाया, ये सब जाहिरी नजासतें थी, लेकिन जो अंदर की नजासतें हैं वो इस पर कुदरत नहीं रखता कि इसे अपने से दूर कर दे। और ये मुझ पाक की बारगाह में आ रहा है तो इसका जाहिर और बातिन दोनों पाक होना चाहिए। तो फरिश्ते जाओ, इसके अंदर जो नजासतें हैं गुनाहों की, इससे उसको अलग कर दो। इससे पहले कि अल्लाह कहे और नमाज में आए, फरिश्ता आता है और उसके अंदर जो नजासतें हैं उससे निकाल कर अलग कर देता है, अलग कर लेता है। तो इसके बाद जब वो नमाज से फारिग होता है बंदा, तो फरिश्ता कहता है, मौला तेरे हुक्म से जब ये नमाज पढ़ने आया था तो मैंने इसकी सारी नजासतों को, गुनाहों को इससे अलग कर दिया था, अब ये नमाज पढ़ चुका तो अब इन गुनाहों का इसके क्या करूं? ये जो गुनाह इससे अलग किए थे उनका क्या करूं? अल्लाह की मशीयत उसकी रहमत पुकार उठती है, फरिश्तों जब अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। कितनी बड़ी नेमत है। अब जरा देखो, फजर में पढ़ लिया, सारे गुनाह अलग, 4 घंटा गुजारा, जोहर पढ़ लिया, जितने बीच में गुनाह हुए थे वो फिर अलग, असर से जोहर से असर तक फिर 3 घंटा गुजरा, जितने गुनाह हुए थे वो उस वक्त अलग, असर से मगरिब के दरमियान जो गुनाह हुए मगरिब पढ़ लिया वो अलग, फिर मगरिब से इशा तक अगर गुनाह हुए थे इशा पढ़ लिया वो अलग। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस में गुनाह बचेगा क्या? 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो बैलेंस में कुछ बचेगा? बैलेंस में कुछ नहीं बचेगा। दिल साफ रहेगा, रूहानियत रहेगी, कल्ब में नूर रहेगा, तो फिर भाई के दिलों में भाई के लिए मोहब्बत पैदा होगी, नफरत नहीं है। बाप के दिलों में बेटों के लिए बेलोश शफकत पैदा होगी, मतलब की मोहब्बत नहीं। बेटे के दिलों में बाप के लिए इज्जत पैदा होगी, अकीदत की इज्जत पैदा होगी, जरूरत की नहीं। भाई के दिलों में भाई के लिए मोहब्बत पैदा होगी, नफरत नहीं। मेरे प्यारे, ये नफरतें सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे दिल गंदे हो गए हैं और साफ करने के अल्लाह ने बेहतरीन नेमत अता फरमाई थी, हमने उससे अपने आप को दूर कर दिया। ये हसद, ये नजासतें अपने सीनों से दूर करने की जरूरत है। अपने अंदर इत्तेहाद रखो, मोहब्बत रखो। तुम नफरतों को बांटने के लिए जमीन पर नहीं रखे गए हो, तुम तो मोहब्बतों को फैलाने के लिए रखे गए। हमारी यही तारीफ है, हमारी यही तारीफ है। नफरत करने वाले नहीं है, दुनिया को पैगाम में मोहब्बत देने वाले। तो दोगे तब ना कोई चीज जब खुद तुम्हारे अंदर होगी। जब तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं तो लोगों को बांटोगे क्या? मेरे प्यारे, तुम दुनिया के दूसरी कौमों की तरह अपने आप को बदलने की कोशिश करो, बदलने की कोशिश करो। सोचो कोई काम करने से पहले कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे आका खुश होंगे कि नहीं। हमारी समझ से हमारे आका नाराज नहीं होंगे, नाराज होंगे तो उस काम को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, और खुश होंगे उस काम को तुम्हें करना चाहिए। आप सब इस मदरसे के इजलास में आए, एक अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। जहाँ पर सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो अब जितना जिक्र हो रहा है ना, अल्लाह की रहमत के साए में आप बैठे, रहमत हो रहा है ना यार। और दूसरी आप मुझे बताइए, आप यहाँ 5 घंटे से बैठे हुए हैं ना, 5 घंटे से बैठे हुए, आपका ये अमल, इस बैठे हुए वक्त में आपको कितनी बार दुनिया याद आई? कोई दुनिया याद आई? नहीं तो किसी से हसद पैदा हुआ? नहीं तो किसी से बुग़्ज़ हुआ? नहीं तो किसी की ऐप पर नजर गई? दुनिया की बुराइयां, आप मौलवी से रहे?
एक ओपन आदमी शहर के इंसान दुआ जब जिक्र कराने खैर होता है तो सुनो दुनिया से आजाद कर देता है। रिज़ाए इलाही की तरफ दिल का मैलान मंगिया रोन जस आपको देखिए इस 5 घंटे में आप ये कह सकते हो कि हमारी एक जिंदगी ऐसी थी जब हम दारुल उलूम हाशमिया नादिरिया फैजान सरकार कला के इजलास में थे तो हमारी जिंदगी का वो 5 घंटा ऐसा था जहां हमारी जिंदगी में सिर्फ दीन ही दीन था, दुनिया ना थी। देखो इन जलसों में आने से ये एहसास मिलता है, ये बरकतें मिलती हैं। यहाँ आना, यहाँ बैठना ये नुकसान का सौदा नहीं है, ये सब फायदे का सौदा होता है। बेशक बेशक मेरे प्यारे, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके अंदर वो एहसास पैदा करे, वो एहसास या रब मेरे मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे और कल्ब को गरमा दे। आप सब कुछ कर सकते हो, बस एक एहसास की जरूरत है। अपने आप को आजाद मत समझिए। आप दावा करते हो गुलाम मुस्तफा बनने का, लेकिन गुलामी का हक अदा नहीं करते। पूछो मेरे प्यारे उन लोगों से पूछो ले जाने थी मैं क्या चला क्या करने गए? जहन्नम से आग से निकाल कर, जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत की बहारों में ले जाने के लिए गए हैं नबी। उनसे कुछ लेने नहीं गए थे, उनको देने गए थे। लेकिन उन नासमझ लोगों ने नबी देने गए थे समझा ही नहीं, पत्थर फेंक रहे हैं, राहों में कांटे बिछा रहे हैं। ये तो हुआ औबाश लड़कों को नबी के सहाबा की तरफ लगा दिया, वो पत्थर फेंक रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, मस्खरापन कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टोन थ्रोइंग कर रहे हैं। ये तो तारीख में मिलेगा। नबी के ऊपर पत्थर फेंके गए, सहाबा चारों तरफ से आ गए, उन पत्थरों को सहाबा ने अपने ऊपर ले लिया, सहाबा घायल हो गए, जख्मी हो गए। ये तो है, लेकिन तारीख ये नहीं दिखा सकती कि किसी एक सहाबी ने भी कोई फेंके हुए पत्थर को उठाकर उन फेंकने वालों की तरफ फेंका, उन फेंकने वालों की तरफ नहीं फेंका, बल्कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला का क्या वो उनका एक्शन था, जालिमाना एक्शन था। अब नबी का रिएक्शन देखो, कितना रहमत भरा रिएक्शन है। वो पत्थर फेंक रहे हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला रब की बारगाह में दुआ क्या करें, मौला तो इन्हें हिदायत दे। वो पत्थर फेंक रहे हैं, आका उनकी हिदायत के लिए दुआ कर रहे हैं। हम ऐसे नबी की उम्मती हैं मेरे प्यारे। हम गैरों को माफ खड़ा हो जा करने का कोई शौक और जज्बा हमें नहीं है, बल्कि अपनों के हाँ लिए बस 40 मिनट दी होगी, जबकि अल्लाह ने हमारी 10-15 मिनट तक दे दे। अस्सलाम क्या पहचान बताई थी? अल्लाह ने ये पहचान बताई थी कि ये जो मेरे महबूब हैं, इनकी जो उम्मत है, इनकी पहचान क्या है? वीडियो बनाया आपस में सिले रहमी से काम लेते हैं, गैरों के मुकाबले में सख्त रहते हैं। इसका मतलब आज हम अपनों से सख्त क्या रहते कर हैं, सकते गैरों से हैं? सिले व्हाट्सएप रहमी से क्या काम करता लेते है? हैं। शाबुन कर व्हाट्सएप की ना होता है अरे ये बरसा मोल भी केड़े हां पैसे मियां या मोइनुद्दीन अली दो में बरसा दो तरह है ना जेडी इल्म बहुत जरूरी है जेल वीडियो बना दिया गया और सिर्फ इल्मी नहीं, बाअमल बनाओ। सही कौन बने यार और एक उस टाइम में दसा के कैमरा तो नहीं लगी रेत मैं देखी गाना दोनों उस तो बहुत साफ की तनु तभी बहुत पता तुम्हारा लगा इल्म में फायदा देगा। दिखा बच्चों से भी कहते और सही बनाना लगा वीडियो कसम है बड़ा ये YouTube पे नहीं चल सकता। हासिल करना मंजिले तंदाज करने ये लाते तेरे सामने बल्कि इल्म अमल के लिए होगा, और अमल उसी वक्त मुअस्सिर होता है जब नियत में अखलास हो। अखलास हो, ये जरूरत है कि नियत नेक रखिए, रिज़ाए इलाही का जज्बा रखिए। जो काम कीजिए मकसूद ये रखिए कि ये काम हम अपने रब की रजा के लिए कर रहे हैं, रब की रजा के लिए कर रहे हैं। करते तो हम बहुत कुछ हैं यार, क्या है जो हम नहीं करते? जलसे भी करते हैं, न्याज भी करते हैं, फातिह भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, लंगर और सबील भी करते हैं। मेरे प्यारे से करते हैं, और करते क्यों हैं? फलां मोहल्ले में 11 देश का लंगर हुआ था, अब हम लोगों को 14 करना है। और क्या करते हैं आप? 11वीं शरीफ की न्याज है, रबीउल अव्वल शरीफ की न्याज है, बच्चे नौजवान बच्चे उठे, घर घर कलेक्शन किया, चंदा किया, 1 हफ्ता उसमें लगे रहे। जब वो मौका आया रात भर बिरयानी बनाने में लगे रहे। क्या रेत मरती उस टाइम में देख इमाम साहब को बुलाया, मर जाए फातिहा दिलवाई, उन्होंने 4 फुल पढ़ा, हाथ उठाया और सीधे गए। उन्होंने फातिहा देने जाना था, वहाँ चले गए। करता था सिस्टम
यही तो है ना। करेंगे। उसके बाद सारा और कितने मिनट जोर, होंगे? सारा फोकस आप लोगों को बिरयानी खिलाने में सब ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് മണ്ണോട്ടാ हाँ तो मेरे को बेटा മണ്ണോട്ടെ सारी चीज जोड़ेगी कसम है आपकी कितने बिरयानी യാസീൻ ने सो गया उसमें ज्यादा ओ बरकत है तो यासने कि अगर बरकत के ही है कलाम में ज्यादा बरकत है। तो सबसे ज्यादा बरकत वाली चीज क्या थी? कलाम है, कुरान की आयत है। उसको तो बड़ा मुख्तसर कर दिया आपने। इमाम साहब ने 4 कुल में निपटा दिया। या इंगरी और जिसमें कम शाह बरकत पर है तेरी उसमें रोटी एक कौन हफ्ते से सारा जोर बना दिया। और तो वहाँ पे कोश नहीं होता क्योंकि ये दुनिया को दिखाने की ये बात दूस भी था ठीक है जिसके लिए कर रहे हैं, अगर उसकी रजा मनहूस होती हाँ, तो फांसी फिर तो करने का अंदाज आपका ये होता कि आप जिस घर से चंदा ले रहे हैं ना, उस घर के लोगों को ताकीद करके आते कि देखिए हम आप चंदा ले जा रहे हैं और उस रात में हम आपके पास आएंगे, हमको आपके घर से 2 पारा चाहिए पढ़ा हुआ कुरान। हर घर से 1 कुरान चाहिए, 1 पारा चाहिए, दरूद शरीफ का विर्द चाहिए। आज पैसा ले रहे हैं, कल दरूद शरीफ 100 तस्बीह दरूद शरीफ हम चाहिए, कलमा चाहिए हमें, कुरान की आयतें चाहिए, 1 पारा कुरान पढ़ के दीजिए या पूरा कुरान पढ़ के दीजिए। फिर इन सबको जमा करके उसको भी इसाले सवाब करते, तो जिसके लिए करते वो आपकी बिरयानी से ज्यादा खुश होता। और कितना फायदा होता, कितना फायदा होता, पूरे मोहल्ले में कुरान की तिलावतें होती। ओए छोड़ भी क्या रबीउल शरीफ का प्रोग्राम छोड़ भी क्या की फॉर भी नहीं आप सब कर लेते, आपस में कर लेते। आपने समझ लिया कि रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन, और आपने उन्हें फिक्स कर दिया कि सारी खुशी हमारे लिए। अरे जब रहमतुल्लिल आलमीन सबके लिए है तो सबको अपनी खुशी में शामिल क्यों नहीं करते भाई? क्यों महदूद कर दिया इसको? नबी की आमद का जश्न है, हमारे आका की आमद ज़रूर गीती पर सिर्फ हमारे लिए रहमत नहीं है, सबके लिए रहमत है। जब सबके लिए रहमत, सबको खुशी में शामिल क्यों नहीं करते? तो आप कहेंगे भाई वो तो मानते ही नहीं, तो अब शामिल कैसे करें? नहीं, शामिल आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं मानते न माने, शामिल कर सकते हैं। काश कि आप ऐसा करें। रबीउल शरीफ में और हर सही लगे हुए थे। इस बात की तरफ निकले, चले जाएं अपने नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स में, यहाँ ओ, ठीक है सारे जाके बंदे। डॉक्टरों से कहें कितने मरीज आपके यहाँ हैं, उनकी क्या क्या दवाइयाँ चलती हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा लें, वो दवाइयाँ खरीदें और हर मरीज को जाएं कुछ फल और कुछ दवाइयाँ कि आज ये फल ये दवा हमारी तरफ से। वो पूछेंगे किस खुशी में? इस खुशी में कि आज हमारे आका की आमद का दिन है, इस खुशी में हम आपको शामिल करेंगे। आप मुझे बताओ, आप ऐसा अमल करोगे तो वो खुश नहीं होंगे? जब रहमतुल्लिल आलमीन सबके लिए है तो उनकी जश्न, उनकी आमद के जश्न में सबको शामिल करो। बहुत पहले 1400 साल पहले उस रेगिस्तान में जब न पोल्यूशन का मसला था, न इन्वायरमेंट का मसला था, न कोई और मसला था, न आबादी इतनी ज्यादा थी, तब नबी ने फरमाया था अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा अपने नाल मुफ्ती साहब है तकरीर उनकी पेड़ लगाया करो। आज मसला है पोल्यूशन का, इन्वायरमेंट का, दुनिया अपील कर रही है पेड़ लगाया करो। सरदार शेर देव चाया है अशरफ में मेरे प्यारे नबी की आमद के जश्न के इस मौके पर एक एक मुसलमान अपने हाथों में एक एक पेड़ लेकर लगाना शुरू करे, ताकि दुनिया इस जश्न में शामिल हो जाए। यही तकरीर की थी। याद करेगी कि किस नबी की उम्मत है जो सिर्फ दुकान में ही वड्डी बहुत विजन, हमारी सोच कोठी महदूद नहीं है। बहुत मुसलमानों की तकरीर करना वास्ते कि जब भी वो प्रोग्राम है उसने 26 जनवरी का नाले खास तबके ही नहीं करता, जब फलाह और सलाह का नाले छोटी मोटी दुकान है, एक वड्डी दुकान है, एक बिल्डिंग तकरीर की थी। हमने अपने आप को बहुत साढ़े वास्ते साढ़े छुट्टी सारे बच्चे गए कुछ कर रहे हो, मुझे सिर्फ 10 मिनट ही गुम थी। हुस्न पैदा करो, उसको पॉजिटिव करो, उसके असर को बढ़ाओ, 10 दिन उसके के दायरे को और बढ़ाओ। मुरीद दी है। जरूरत है इस चीज को। दुनिया परेशान है मेरे प्यारे, दुनिया गुमगश्ते राह है। उस गुमगश्ते राह इंसानियत में आप ही हो जिसके हाथों में चिराग है। और आप उस चिराग को ढक कर बैठे हुए हो। निकलो बाहर, दुनिया की रहनुमाई करो, पहले अपनी इस्लाह करो, फिर दुनिया को उस हिदायत के चिराग से रोशन करने की कोशिश करो।
बदलो अपने कल्चर को, अपने मुसलमान होने पर तहदीस नेमत के तौर पर फख्र महसूस करो। अल्लाह का ये अजीम नेमत को, उसका एहसान है कि तुमको साहिब ईमान बनाया है। इसकी कदर करो, भी प्रैक्टिकल अमली तौर पर। बहुत मैं मीठा हूँ, याद रखिए, बहुत गर्दन इसी किस्म के मुसलमान बनने से अब काम आसूदगी का जमाना खत्म हो गया। आप देख नहीं रहे कि किसी भी दुनिया के कोने से जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की कोई भी आंधी उठती है, आप गौर नहीं करते, उसका रुख मुसलमानों के नशेमंदी की तरफ होता है। हमारे ही घर उजाड़े जा रहे हैं, हमारे ही बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, हमारी ही आबादियां तबाह की जा रही हैं। कब जागोगे मेरे प्यारे? और वजह क्या है? याद रखिए मेरे प्यारे, वजह सिर्फ एक ही वजह है मेरे प्यारे। एक मिसाल से समझाता हूँ कल में और आज में क्या फर्क हो गया। एक मिसाल बिल्कुल आपके बीच की। आप अपने दरवाजे पे खूंटे से बांध और वो गाय या भैंस आपके खूंटे से बंधी है, तो क्या उसे कोई मारने की हिम्मत कर सकता है? बोलो ना मेरे प्यारे, करेगा? क्यों? भैंस से डरता है क्या मारने वाला? गाय से डरता है क्या मारने वाला? नहीं, भैंस और गाय का कोई डर नहीं उसको डर इस बात का है कि जिसके खूंटे से बंधी है, अगर उसे मारेंगे हम तो उसका मालिक जो है हमारा मुहासबा करेगा। यही तो है ना, मालिक हमारी पकड़ करेगा। तुमने हमारी गाय को क्यों मारा, हमारी भैंस को क्यों मारा? यही तो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन वही गाय या वही भैंस आपके खूंटे से रस्सी तोड़ाकर भाग जाए बेवफाई करके, तो मेरे प्यारे वही भैंस जिसे मारते वक्त आदमी सोचता इसे नहीं मार सकते, वही भैंस जब तुम्हारे दरवाजे से रस्सी तोड़ाकर गलियों बाजारों में जाती है तो देखने में क्या आता है? बच्चे हैं तो मार रहे हैं, बड़ा है तो मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यही तो होता है ना। तो कोई जानवर मालिक के घर से भाग जाता है तो फिर हर शख्स से मारता है, लेकिन जब तक वफादारी के साथ मालिक के खूंटे से बंधा रहता है, किसी में हिम्मत होती है मारने की? नहीं होती ना। बिला तफसील समझो मेरे प्यारे, जब तक हम रज़ाए इलाही के रस्सी से अपने आप को बांधे रहे, किसी दुनिया में हिम्मत नहीं थी कि हमारी तरफ उंगली उठा दे। और जब से हमने उस राह को छोड़ा है तो जिन्हें तहजीब हमने सिखाई, जीने का शऊर हमने दिया है, सलीक़े जिंदगी हमने दी थी, वो सब आज हमें अपने जूतों की नोकों पर रखे हुए। इस हिंदुस्तान में सलीका किसने दिया जिंदगी का? हमने दिया। शऊर किसने दिया? हमने दिया। इंसानियत में मानवता का पाठ किसने पढ़ाया? हमने पढ़ाया। आज ये कौम हमें ही जूतों की नोकों पर रख रही है, इसलिए कि हमने अपने मालिक से वफादारी छोड़ दी है। हम भी इस दुनिया में गुम हो गए हैं, इसके रस्म और रिवाज में गुम हो गए, इसकी जरूरतों में गुम हो गए हैं। सुबह से शाम हो जाती है, हम उस रब को कभी याद नहीं करते, कभी उसकी रजा का ख्याल नहीं रखते। हमारे दिलों से फिक्र आखिरत निकल चुका है। हमने समझ लिया है कि अब हम दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे नहीं। जब रोज हमारे सामने आती कोई न कोई हमें जाता हुआ इंसान नजर ही आ जाता है। 50 मिनट का 1 घंटे की तकरीर है, मुझे पता है। अपनी सुबह शाम की जिंदगी का जायजा लेना होगा, वफादारी मुस्तफ़ा का हक अदा करना होगा, गुलामी मुस्तफ़ा का हक अदा करना होगा। ये ईमान जो अजीम नेमत रब ने हमें अता की है, इसकी कदर करना होगा, अमलन कदर करना होगा। बताना होगा हमें कि हम मुसलमान सिर्फ रस्मी किस्म के नहीं हैं, बल्कि हकीकी मुसलमान हैं मेरे प्यारे। ये सारी बातें, कमी आज भी कुछ नहीं है, मायूस मत हो, कमी आज भी कुछ नहीं है। इस मकाम पर आपके हौसलों को, यकीन को मैं पुख्तगी देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए ये बात कहता हूँ मेरे प्यारे, ना रब के फजल में कुछ कमी है, ना आका की मोहब्बतों में कुछ कमी है। आज भी इस मेटलिज्म के जमाने में, मादियत के जमाने में भी, जहाँ हम दुनिया में खो चुके हैं, उधर से कोई कमी है नहीं है। न रब के फजल में कुछ कमी है, न आका के शफ़क़तों में कुछ कमी है। कमी हम में आ गई है। सारी चीजें 4-5 बरकतों में कोई कमी है, न सजदों की बरकतों में कोई कमी है, कहीं उधर से कमी नहीं है, कमी हम में आ गई है। एक मिसाल देकर समझाता हूँ मेरे प्यारे, यकीनन आप भी जानते हो कि सहाबा अजीम, सहाबा का जमाना भी अजीम। जो सहाबा को अजमत हासिल है वो किसी को हासिल नहीं हो सकती, जो उनके जमाने को अजमत हासिल है वो किसी को नहीं सकती।
سارے اقواس کو، ابدال کو، اوتاد کو، نجبا کو، اخیار کو، اگر سارے محدث کو، فقیہ کو، مفسر کو، سارے علوم و فنون رکھنے والے کو کسی ایک ذات میں سارے علوم و فنون ڈال دو، سب ملا دو، تب بھی کوئی صحابی کے تلووں کی دھول کے برابر نہیں۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یقیناً وہ عظیم، ان کا زمانہ عظیم، جو ان کے زمانے کو عظمت حاصل ہے وہ کسی زمانے کو نہیں ہو سکتی، جو انہیں عظمت حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی ان صحابہ کی مقدس جماعت کی بارگاہ میں دست بستہ یہ کہے گا، بطور فخر مباحات تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہے گا کہ سرکار آپ عظیم، آپ کا زمانہ عظیم، یقیناً رب کا آپ پر بڑا عظیم فضل ہے، لیکن حضور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم نہیں ہے۔ آپ عظیم، آپ کا زمانہ عظیم، لیکن حضور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم نہیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے ایمان دیا، نبی کو دیکھا ایمان ملا، نبی کا تبسم دیکھا ایمان ملا، نبی کا تکلم دیکھا ایمان ملا، نبی کا روح زیبا دیکھا ایمان ملا، سورج کو پلٹتے دیکھا ایمان ملا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ایمان ملا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ایمان ملا، پیڑ کو سایہ کرتے دیکھا ایمان ملا، جانوروں کو بات کرتے دیکھا ایمان ملا، نبی کی شفقتیں دیکھی ایمان ملا، نبی کا کرم دیکھا ایمان ملا، نبی کے معجزات دیکھے ایمان ملا۔ حضور یقیناً رب کا فضل آپ پر ہے، آپ کو اللہ نے ایمان دیا، آپ نے نبی کو دیکھا ایمان ملا، ہم پر بھی فضل کچھ کم اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا پھر بھی ایمان ملا۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر بھی ایمان ملا، کچھ کمی نہیں ہے، بس تھوڑا سا تم اپنے آپ کو سمجھ لو، اپنے آپ کو پہچان لو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو۔ آج مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان خود اپنی ایڈنٹیفیکیشن کھو چکا ہے، وہ اپنی پہچان بھول گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے انسانوں کی طرح بھی ایک انسان ہے، دنیا میں آئے ہیں، کمانا ہے، کھانا ہے، اپنے بال کو جمع کرنا ہے، اپنا وارث چھوڑ کر دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم نے بھی دنیا کو دیکھ کر یہی اپنی